Hello dear students, I am JP Nautiyal from Rishiram Shikshan Sansthan online education, online study, and today we will learn the second chapter from class 9 CBSE Movements book, and name of the story or the chapter is The Adventures of Toto, and the story is written by Ruskin Bond. This story is written by Ruskin Bond, and the title of the story Adventures of Toto is about the fate, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे तो कर्तव्य, fate of a monkey named Toto. Here you can see the writer Ruskin Bond, and as we know that Ruskin Bond, famous story writer in English, and they stayed during British rule in India in Missouri. They stayed in Missouri, also born here in India. The Adventures of Toto यानी कि टोटो की शरारतें या उसके फेट, FEAT, फेट. फेट मीन्स एडवेंचर्स या शरारतें, और टोटो is name of a pretty monkey. So let's start the new word meaning or the tough word meaning and the explanation of the chapter, line by line, paragraph by paragraph. So if I introduce the entire story first, then the length of the video will become so long. So I will start explaining tough word meaning here and the overall summary of the each paragraph, each line at the same time. Let's start the reading. Have you ever had a baby monkey as a pet? Pet means domesticized, domesticated. क्या कभी तुमने किसी बेबी मंकी, छोटे बंदर को या बंदर के बच्चे को कभी अपना पेट बनाया? पेट मीन्स डोमेस्टिक या पालतू बनाना. एंड दिस इज अ क्वेश्चन बाय द राइटर और द नरेटर ऑफ द स्टोरी कि क्या तुमने कभी बंदर के बच्चे को पालतू बनाया? टोटो is a baby monkey, and here in this chapter the Toto about which the story narrated or written, that's a baby monkey. That's a baby monkey. वो बंदर का बच्चा है. Let's find out whether he is mischievous or docile. Docile means humble or polite, और mischievous means naughty या शरारती. तो mischievous का मतलब हो गया naughty या शरारती, और docile का मतलब हो गया humble और polite. यानी कि जो बंदर का बच्चा है, we cannot imagine that it can be a docile or humble. Always there's a lot of mischievousness or naughtiness exists within the monkeys. That's their by birthright, to make the naughtiness or the mischievous activities. That's God gift to them. ईश्वर की देन है उनको. वो कभी विनम्र हो ही नहीं सकते, कभी पोलाइट नहीं हो सकते हैं. They make always some naughtiness or the mischievous activities. Let's continue reading of the paragraph here. You can see. So, grandfather of the narrator. Grandfather of the narrator, this story bought Toto
from a Tonga driver. Tonga driver, Tonga is a horse cart, यानी कि घोड़ा गाड़ी, जिसको हम तांगा बोलते हैं. That's the grandfather of the narrator. Bought means purchased. उन्होंने खरीदा था टोटो को, जो वो बेबी मंकी है, फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, या फिर तांगा चालक से, तांगा के ड्राइवर से. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, ओनली 5 रुपीज़, केवल 5 रुपये में तांगा ड्राइवर से, हॉर्स कार्ट के ड्राइवर से टोटो, जो बेबी मंकी है, परचेज किया. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would and add the little fellow to his private zoo. Then this feeding trough means a container to feed the cattle or animals. एक ऐसा टब, नांद जैसी ऐसे बना होता है टब, इसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है. इसमें फीडर, फॉडर और ये सब उसमें खिलाया जाता है. जानवरों को खिलाने के लिए जो कंटेनर यूज़ किया जाता है, फॉर दैट फीडिंग ट्रफ. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, यानी कि दैट्स लुक्ड वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि टोंगा ड्राइवर ने क्या है, उसको फीडिंग ट्रफ से बांध करके रखा होता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, तो वहाँ पर वो वेरी एक्वायर्ड, वेरी ऑड फील होता था. सो द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. मतलब कहने का ये है कि जो नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि उनका अपना कोई प्राइवेट जू है, अपना कोई प्राइवेट चिड़ियाघर है, यानी कि वो एनिमल लवर ह्यूमन बीइंग है, और उन्होंने अपने घर में क्या कर रखा है, एक चिड़ियाघर बना रखा है, एक प्राइवेट जू बना रखा है. और अब वो चाहते हैं कि डिसाइडेड मीन्स मेक डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन बनाया, अपना मन बनाया कि जो ये टोटो, जो ये छोटा लिटिल, जो ये मंकी है, रेड मंकी, इसको क्या होना चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए, मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर इस टब से, इस नांद से ये बंधा हुआ है, जो कि हॉर्स कार टोंगा ड्राइवर ने बांध के रखा था उसको, और ये बहुत ही आउट ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यों है, ये मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए. लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. अब इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं न्यू वर्ड्स का, और एक्सप्लेनेशन भी. लेट्स कंटिन्यू. टोटो वाज अ प्रेटी मंकी. प्रेटी मीन्स चार्मिंग, अ ब्यूटीफुल और प्लीजिंग, एक सुंदर बंदर था, प्रेटी मंकी. अब यहाँ पर जो नरेटर्स ग्रैंडफादर ये टोटो को लेके आने के लिए मन बना चुके हैं, और अभी जो नरेटर हैं वो टोटो की जो उसका लुक है, जो उसकी अपीयरेंस है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि वो क्या है, एक प्रिटी मंकी, एक प्लीजिंग सुंदर बंदर है. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, एंड और जो
आईब्रोज बंदर को देखा होगा तो उनकी जो आंखें होती हैं, ऐसा लगता है कि आईब्रो के अंदर से उनकी आंखें धसी हुई हैं। तो उसके अंदर जो उसकी ब्राइट स्पार्कल मीन्स ब्राइट, शाइनिंग, चमकदार, शोन, तो स्पार्कल विद मिसचीफ, शरारतों से भरी हुई, फुल विद नॉटीनेस, फुल विद मिसचीफ, बेनिथ डीप सेट आईब्रोज, जो आंखें हैं शरारतों से भरी हुई, जो उसकी चमकदार आंखें हैं, वो भौहें या आईब्रोज के अंदर धंसी हुई जैसे। एंड हिज टीथ, अब उसके दांतों के बारे में क्या है, विच वर अ पर्ली वाइट, मोतियों से चमकदार, bright as pearl, that's pearly white, were very often displayed in a smile, और वो अक्सर कब दिखाई देती हैं, often, very often, कब दिखाई देती हैं, displayed in a smile, जब वो हंसता है, मुस्कुराता है, तब वो दांत उसके दिखाई देते हैं। और वो क्या करते हैं जब वो दांत दिखाई देते हैं, that frightened, that horrified और terrified the, किसको, the light out, the life out of elderly Anglo-Indian ladies, life out एकदम डेडली, इतना खतरनाक, इतना डरावना हो जाता है कि जो ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि दोज पीपल हुज एंसेस्टर्स बिलोंग्स टू England or British as well as from India. Then this story set before freedom, and that time the Anglo-Indian peoples used to stay here in India. तो जो बूढ़ी एल्डरली जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, वो उसकी हंसी को या जब वो दांत दिखाता है तो उससे होश उड़ा देने वाली, लाइफ आउट, होश उड़ा देने वाली डर पैदा कर देती थी उन लेडीज़ के दिल में। बट हिज हैंड्स, लेकिन अब उसके हाथों के बारे में क्या है, लुक्ड ड्राइड अप, जैसे कि सुखाए गए हों। कैसे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड मीन्स अचार जिसको बोलते हैं। कैसे पिकलिंग कैसे होती है, कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़ है उसको विनेगर में रख करके उसको धूप में बहुत लंबे समय तक सुखाया जाता है, देन द वेजिटेबल बिकम रिंकल्ड, उन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो मैनी ईयर्स, कई सालों से उनको धूप में अचार की तरह सुखाया गया हो विनेगर डाल करके। तो ऐसे उसके हाथ हैं ड्राइड अप, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वेक्ड, और इसके बावजूद जो उसकी उंगलियां हैं वो कैसी हैं, बहुत ही मीन्स फुल विद मिस नॉटीनेस, विक्ड, शरारतों से भरी हुई। वैसे विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या फिर फुल विद सिन, पाप से भरी हुई, लेकिन यहाँ पर पाप से भरी हुई नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फुल विद मिसचिफनेस, क्विक, और बहुत ही फास्ट है, पता नहीं चलेगा कब क्या कर देगा, कुछ मालूम नहीं, उसकी उंगलियाँ इतनी तेज़ हैं। एंड विक्ड, एंड हिज टेल, अब उसकी पूंछ के बारे में बात करते हैं। हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, अब जो उसकी सुंदरता पे क्या करता है, चार चांद लगाती है उसकी पूंछ। अब ग्रैंडफादर का ऐसा ट्रस्ट है बिकॉज ही इज़ एन एनिमल लवर ह्यूमन बीइंग, सो जब वो जानवरों को प्यार करने वाले इंसान हैं तो वो क्या कहते हैं कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर ट्रस्ट, उनका विश्वास है दैट अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, जो ये पूंछ है ये किसी की भी सुंदरता पे क्या करती है, चार चांद लगा देती है। तो ये जो टोटो, जो ये बेबी मंकी है, वो इस पूंछ से क्या और सुंदर दिखाई देता है। ऐसा उसके ब्यूटी, उसके लुक का यहाँ पर नरेटर ने एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी आँखों का, उसके हाथों का, उसकी मुस्कुराहट का, दांतों का, और उसकी उंगलियों का, और साथ ही साथ उसकी पूंछ का भी। और उसकी जो पूंछ है वो क्या करती है, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, एंड एज यू हैव सीन मैनी ऑफ दिस monkey class animals like gorilla,
and that black monkey also served as a third hand. उनकी जो पूंछ होती है वो एक तीसरे हाथ की तरह काम करती है, as a third hand. And उस थर्ड हैंड से ये क्या कर सकते हैं, he could use it to hang from a branch. वो हाथों को छोड़ करके और अपने पूंछ को किसी भी ब्रांच से, किसी भी पेड़ की शाखा से उसको लपेट करके वो लटक जाते हैं वहाँ पर. Can be hang by the tail. And it was capable of scooping. Scooping, taking up. Scooping यानी कि बाहर निकालना, scooping up, picking up और taking up. Picking up any delicacy. कोई भी जो delicacy है, कोई भी cooked good food. Delicacy बोलते हैं cooked good food, जो पकाया गया अच्छा भोजन है. That might be out of reach of his hands. और जो क्या हो सकता है, जो भी उसकी पहुंच से बाहर है, उस खाने को निकालने के लिए ये अपने तीसरी हाथ यानी कि पूंछ का इस्तेमाल करते हैं. कौन? बंदर. तो ये टोटो भी ऐसे ही करता है. तो इसकी पूंछ जो है उसके लिए एक थर्ड हैंड की तरह काम करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड. फ्यूज्ड मीन्स फ्यूरियस होना या गुस्सा होना, एंग्री होना. मेड मच नॉइज, वी कैन से बहुत शोर शराबा करना. व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. जब भी दादाजी कोई नया एनिमल, कोई जानवर लेकर के आते थे या कोई बर्ड या कोई चिड़िया लेकर के आते थे अपने प्राइवेट जू में, तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, शोर शराबा करती थी, हो हल्ला, यानी कि बहुत गुस्सा हो, बिकम वेरी फ्यूरियस, वेरी एंग्री. सो इट वॉज डिसाइडेड. तो फिर क्या मन बनाया गया, क्या डिसाइड किया गया? टोटो को ले तो आए थे 5 रुपए में, लेकिन उसके लिए अब कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए? दैट टोटोज प्रेजेंस, कि जो टोटो की जो उपस्थिति है, जो उसकी प्रेजेंस है, उसको क्या किया जाए? छुपाया जाए. शुड कीप अ सीक्रेट. दैट मस्ट बी केप्ट एज एन कॉन्फिडेंशियल थिंग, कि हम बंदर लेकर के आए, उसको दादी से छुपाना होगा. फ्रॉम हर, हर यहाँ पर आया है फ्रॉम ग्रैंडफादर. अनटिल, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, शी वॉज अ पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना हो जाए, एक अच्छा उनका मन ना हो जाए कुछ ऐसा बात सुनने के लिए, तो तब तक का वेट करना होगा. एंड व्हेन द ग्रैंडमदर विल बिकम इन अ गुड मूड, दैट टाइम द ग्रैंडफादर will exposed the presence of the Toto monkey. Now grandfather and I here the narrator and grandfather, narrator's grandfather, put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब एक छोटी सी अलमारी में, जो क्लोसेट wall mounted almirah, you can say that's closet means wall mounted almirah. और उसकी ओपनिंग कहाँ होती? इनटू माय बेडरूम. माय बेडरूम, नरेटर्स बेडरूम, और उसकी दीवार में माउंटेड है. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली. सिक्योरली सुरक्षित, पूरी तरह से, केयरफुली, सिक्योरली. और सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा है कि हमने ठीक तरह से सिक्योरली उसको बांध दिया है. टाइड, वी टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट, ऐसा हमने सोचा था. टू अ पेग. Peg means a nail, fastened means fixed into the wall. और उस अलमारी से लगा हुआ क्लोसेट, और उसकी जो ओपनिंग है, away in a little closet opening into bedroom, narrator's bedroom wall, and where he was tied securely, ठीक तरह से उसको बांधा गया. किससे? a peg fastened into the wall, एक नेल जो कि दीवार में अच्छी तरह से, जो फास्टन टाइटली फिक्स्ड की गई थी, उस दीवार से उसको बांधा गया. अब क्या होता है, उसको बांध तो दिया, लेकिन अब क्या होता है आगे? लेट्स कंटिन्यू. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother
would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब देखते हैं कि यहाँ से उसकी मिस्चीफनेस शरारनौटीनेस यहाँ से शुरू हो जाती है, और फिर हमने ये सोचा कि हमने अच्छे से टोटो को, नरेटर के शब्दों में बोल रहा हूँ, that what the narrator thought that they tied securely Toto with the wall-mounted closet or almirah and tied with the nail fixed in the wall. But what happened? A few hours later, कुछ घंटों बाद जब हम देखते हैं, वापस आते हैं, when grandfather and I came back to release Toto. अब टोटो को खोलने के लिए, घुमाने के लिए जब वापस कमरे में आते हैं तो क्या देखते हैं? we observed that the walls, जो दीवारें हैं वो कैसी हो गई हैं? which had been covered with some ornamental paper. अब जो पहले सुंदर जो वॉलपेपर हैं, ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल सजावटी जो होते हैं, शोवी, दिखाने लायक जो ऑर्नामेंटल हैं, मीन्स ब्यूटीफुल वॉलपेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर लेकर के आए थे, सुंदर जो पेपर हैं, पोस्टर्स, कैलेंडर्स एट्सेट्रा, एंड नाउ स्टूड आउट एज नेकेड यानी कि अनकवर्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. अब वो जो कैलेंडर थे, जो पोस्टर थे, जो ऑर्नामेंटल पेपर्स थे, सारे के सारे टॉन्ट अप बाय द टोटो, सारे के सारे टोटो ने फाड़ दिए हैं, और वहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर वॉल. अब वो नंगी दिखाई दे रही हैं, मीन्स अनकवर्ड. नेकेड मीन्स अनकवर्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. अर्लियर that was covered with the ornamental beautiful papers. Now all the papers torn up, wrenched out, removed by the Toto. और जो कील थी, जो पैग थी, जो नेल थी, उसका क्या किया है? इन द वॉल had been wrenched out. Wrenched out means removed by force. बलपूर्वक उसको took out by force, took out with force. बलपूर्वक उसको निकाल करके बाहर कर दिया from its socket. जो ये वॉल माउंटेड वॉल के अंदर फिक्स थी, वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और नरेटर का जो कोट था, जो स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वो पास में ही उस क्लॉसेट, उस एलमिरा के पास में टांगा हुआ था, वहाँ पर लटक रहा था, वाज इन श्रेड्स मीन्स थ्रेड्स. अब वो बिल्कुल धागों में, पीसेस, इन स्मॉल पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके चिथड़े उड़ा दिए उस कोट के. आई वंडर्ड what grandmother would say. और मैं क्या हुआ? वह सरप्राइज्ड. अब मैं सरप्राइज में था, बहुत ही आश्चर्यचकित था कि अब दादी क्या बोलेंगी कि कोट कहाँ गया भाई, कोट किसने फाड़ दिया, कैसे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए. what would grandmother say? but grandfather didn't worry. लेकिन जो दादाजी हैं, एनिमल लवर, प्राइवेट जू ओनर, didn't worry. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको चिंता नहीं है. No any difficulty. He seemed pleased means relaxed. बहुत ही आराम में दिखाई दे रहे हैं with Toto's performance. Pleased also happy, खुश भी हैं वो उसकी परफॉर्मेंस से. और फिर क्या बोलते हैं? He is clever. वो बहुत ही चालाक है, बहुत चतुर है. Said grandfather. जो ये टोटो है, ये बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है, बहुत समझदार है. Given time, अगर हमने उसे समय दिया होता, दादाजी कह रहे हैं कि गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. देखो, दादाजी उसकी शरारतों से खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने उसे थोड़ा और लेट में आते और अगर हमने टाइम दिया होता तो आई एम श्योर मीन सर्टेनली आई कैन से दैट ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस. वो क्या करता कि जो टुकड़े टुकड़े तुम्हारे ब्लेजर के जो हो रखे हैं उनको बांध करके एक रस्सी बना देता है ना, तो थ्रेड और श्रेड्स में कन्वर्ट हो चुकी थी. एंड एज यू नो दैट द रोप मेड अप ऑफ द थ्रेड्स, जो बारीक बारीक धागे हैं उनसे एक साथ जब हम जोड़ देते हैं तो उससे एक रस्सी तैयार हो जाती है. तो वही जो रोप है, एंड मेक हिज एस्केप निकलने का, भाग जाने का जो रास्ता है वो वहाँ से बना लेता. कैन एस्केप रन आउट फ्रॉम द विंडो, और फिर खिड़की से बाहर उस रस्सी को लटका देता और वहाँ से भाग जाता.
तो ये दादाजी कह रहे हैं कि ये इतना चालाक है भाई, देखो ये तो बहुत समझदार है, और ये अगर हमने थोड़ा टाइम दिया होता तो दादाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बल्कि उल्टा खुश हो रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हिज प्रेजेंस, यहाँ पर देख रहे हैं, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, अभी भी उसको नहीं बताया, नहीं डिस्क्लोज़ किया गया है। सारी दीवार के कैनवा, ये जो पोस्टर्स हैं जो ऑर्नामेंटल पेपर से कवर किया था, वो सारे फाड़ दिए हैं। जो कील वॉल सॉकेट में निकली थी उसको भी बाय फोर्स रिमूव्ड आउट, रेस्ट फ्रॉम द वॉल, वो भी निकाल दिया है। और साथ ही जो ब्लेजर, जो कोट जो टंगा हुआ था नरेटर का, स्टोरी टेलर का, वो भी जो है फाड़ दिया गया है थ्रेड्स में, फिर भी वो कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर। अब क्या डिसीजन किया गया भाई, अंदर तो ये इस तरह से नुकसान कर रहा है, ये फाड़ दे रहा है चीज़ों को, कील से निकाल दे रहा, तो इसको एक केज में, एक पिंजड़े में इसको रख लेते हैं। तो क्या करना है उसको, अब एक केज में उसको, जो पिंजड़ा है उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टेड टू एक बड़े से केज में, द सर्वेंट्स क्वार्टर। और जो वो था वो कहाँ था, जो घर में जो काम काज करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, दैट सर्वेंट, डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके क्वार्टर्स में, उनके हाउस में। और वहाँ पर क्या है, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली। सोशिएबली मीन्स मिलजुल करके, एक दूसरे से बहुत ही मिलजुल करके ये और जो जानवर थे वो रहते थे वहाँ पर। तो ये जो है बहुत ही सोशियबली, मतलब मिलजुल करके, वेरी हम्बली, वेरी पोलाइटली दे लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ में सहयोग से वो लोग रहते थे वहाँ पर। कौन कौन थे भाई, देखो दादाजी के पिंजड़े में, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट। अब देखो वहाँ पर एक कछुआ है और एक पेयर रैबिट्स का है, खरगोश का एक जोड़ा है, 2 खरगोश हैं। टेम स्क्वेरल यानी कि जो पेट, टेम का मतलब है पेट या पालतू या डोमेस्टिक, डोमेस्टिक पालतू स्क्वेरल, एक गिलहरी भी है। एंड फॉर अ वाइल, और इसके साथ साथ में क्या है, माई पेट गॉट, और साथ में मेरी पालतू बकरी भी। तो ये सर्वेंट्स क्वार्टर में वहाँ पर रह रहे हैं और ये सोशियबली मिलजुल करके रह रहे हैं। बट द मंकी wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब क्या होता है कि उस रात को सर्वेंट्स क्वार्टर में जो केज में है, उसने इन सब जानवरों को, जिसमें कि कछुआ है, एक गिलहरी है, खरगोश का जोड़ा है, बकरी है, उन सबको रात भर सोने नहीं दिया। वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, जो साथ में जो और जो फेलो, जो रहने वाले जो दोस्त हैं, फेलोमेट्स, उनको नहीं सोने दिया, टू स्लीप एट नाइट। तब दादाजी ने क्या डिसाइड किया, ग्रैंडफादर डिसाइडेड, उनको जाना था पेंशन लेने के लिए देहरादून, नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। देहरादून जाना था क्योंकि सहारनपुर से उनका पेंशन, एंड पेंशन इज़ अ मनी विच द ओल्ड पीपल गेट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। पेंशन उस मनी को कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं जो जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, जो अपनी नौकरी की रिटायरमेंट के बाद में जो कुछ पैसा पाते हैं, उसको पेंशन बोलते हैं। एंड ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग हिम, यहाँ पर टोटो के लिए आया है कि टोटो को वो अपने साथ में ले करके जाएंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया कि कल मैं पेंशन लेने के लिए जा रहा हूँ सहारनपुर, तो फिर कल मैं क्या करूँगा, टोटो को अपने साथ में लेके जाऊँगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उसकी जो मिसचीवनेस है, जो भी उसका जो नॉटीनेस है, वो क्या क्या करता है, अब वो इस क्या क्या उसके एडवेंचर्स रहते हैं ड्यूरिंग जर्नी, एट द टाइम ऑफ जर्नी, वो यहाँ पर अभी डिस्कस किया गया है। अनफॉर्चुनेटली मीन्स बैड लक, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, अनलकीली क्या होता है, आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और मतलब मैं नहीं जा पाया, मैं, हेयर मीन्स द नरेटर, और जो स्टोरी टेलर हैं
वो हमसे ये कह रहे हैं कि अनलकीली आई कुड नॉट accompany मतलब मैं उनका साथ नहीं दे सका, accompanying आई कुड नॉट बी along with the father in that trip, मैं ग्रैंडफादर के साथ में उस ट्रिप पर नहीं जा सका। या मैं बट he told means grandfather told me about it afterwards later on, बाद में क्या किया, दादाजी ने मुझे इस पूरी जो ये कहानी है वो सब बताई, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जर्नी पे नहीं गया था देहरादून और सहारनपुर वाली, लेकिन उस जर्नी के दौरान जो भी टोटो के साथ में ग्रैंडफादर का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको बाद में दादाजी ने मुझे बताया लौटने पर। फिर क्या हुआ, कैसे जर्नी सेट की गई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो बिग ब्लैक एक बड़ा सा काला कैनवास किट बैग यानी कि जो टेंट का जो मटेरियल होता है, और रफ और कोर्स क्लोथ जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, खुरदुरा और जो ऐसा कपड़ा है मोटा कपड़ा, उसका क्या किया गया, ये जो टेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कैनवास, उसका एक बैग बना दिया गया और वो टोटो को ले जाने के लिए मीन्स कैरी बैग प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ कैनवास। तो एक मोटा सा कोर्स और थिक रफ क्लॉथ का एक बैग बनाया गया और वो जो है टोटो का घर हो गया। दिस विद सम स्ट्रॉ, और उसको क्या किया गया, कुछ उसमें स्ट्रॉ हे या पुआल जिसको कहेंगे हम लोग, या शेफ जिसको कहेंगे, तो धान का जो तना होता है सूखी जो घास होती है एट द बॉटम, और उसके नीचे डाल दी गई वो। बिकेम हिज न्यू एडॉब मीन्स प्लेस फॉर लिविंग, वी कैन से द टेम्पररी हाउस। तो उसका एक टेम्पररी हाउस बन गया, वो एक उसकी जगह बन गई रहने के लिए। तो उस ब्लैक कैनवास बैग में उसको रखा गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब उसको बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो वहाँ से भागने का, क्योंकि कपड़ा मोटा है उसको काट नहीं सकता है, तो ऊपर से उसका चेन बंद कर दिया, तो वहाँ से वो भाग नहीं पाएगा, कैंट बी एबल टू एस्केप रन अवे। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और जो कोई भी ओपनिंग थी, गहरा था, डीप था बैग, तो वो नीचे बैठा हुआ है बॉटम में बैग के, और फ्रॉम देयर ही कुड नॉट स्प्रेड और स्ट्रेच हिज हैंड्स आउट फ्रॉम द ओपनिंग, एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और रास्ते भर में क्या है, क्योंकि त्रिपाल जो कैनवास का क्लोथ है वो रफ है, कोर्स है, मोटा कपड़ा है, थिक है, तो उसको पूरे रास्ते भर में वो बाइट नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा, और डीप है तो नीचे से अपने हाथ भी ऊपर नहीं फैला पाएगा, ऐसा सोचा गया था पहले। बट व्हाट हैपेंड लेटर, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। लेकिन जो उसकी मिस्चीवियसनेस है, जो उसका नॉटीनेस है, वो तो ख़त्म नहीं होगी। तो वो क्या करता है, उसके जो एफर्ट्स हैं टू एस्केप, बाहर निकलने के, वो क्या करते थे, उस बैग को रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। जब दादाजी उसको बैग को फर्श पर रखते थे तो वो बैग क्या होता था, फर्श पर रोल करने लगता था, लुढ़कने लगता था, क्योंकि अंदर टोटो है, और वो जब जंप करेगा, रोल करेगा तो बैग में। और ओकेजनली मीन्स सम टाइम, अचानक ही क्या होता है, एट टाइम्स, कभी कभी ऐसा भी जंप इनटू द एयर, क्योंकि अंदर से टोटो जंप करेगा तो बैग भी जंप करेगा। तो वो क्या है, बैग कभी फर्श पर रोल करता है और कभी हवा में उछलता है। एंड दैट्स एन एग्जीबिशन यानी कि शो, एक क्राउड को इकट्ठा करने वाला एक तमाशा बन जाता था। एन एग्जीबिशन एट दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, क्यूरियस यानी कि फुल विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से भरे हुए लोग, कि विलिंग टू नो, ये जानने के लिए कि भाई ये जो बैग है ये क्यों फर्श पर रोल कर रहा है, क्यों ये हवा में जंप कर रहा है। और वहाँ पर क्या हो गया, एक तमाशा, एक भीड़, एक क्राउड, एक मॉब इकट्ठा हो जाता है और वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं उस बैग की तरफ। और फिर क्या होता है, क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ की बात है, देहरादून प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो देहरादून प्लेटफॉर्म पर जब दादाजी ने बैग को नीचे ज़मीन पर रखा तो वो रोल कर रहा था,
और कभी हवा में जंप कर रहा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a wide grin. A wide grin, एक बड़ी सी मुस्कुराहट, यानी कि जो खीज होती है, बंदर अपने दांत दिखाते हैं, खिसियाना जिसको बोलते हैं, तो ऐसी वाइड ग्रिन उसने किसको दिया? टीसी को दिया, जो टिकट कलेक्टर हैं उनको दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है टर्नस्टाइल, तो देखते हैं टर्नस्टाइल का एक फ़ोटो है, एक ऐसा गेट जिससे एक बार में एक ही आदमी पास हो सकता है, दैट्स कॉल्ड टर्नस्टाइल। वी सी इट इन द बॉटम, ग्लोसरी में दिया है, ग्लोसरी के वर्ड मीनिंग भी लिखने, और ये है दिस इज़ टर्नस्टाइल, ये जो गेट है दिस इज़ टर्नस्टाइल। तो इस गेट से क्या है कि अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one people or one person at a time to pass through. केवल एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी होगा तो गेट घूम करके वो बाहर निकल जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड टर्नस्टाइल। तो ये जो गेट है मैकेनिकल गेट, तो यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं और उस गेट के पास में मीन्स एग्ज़िट है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो एग्ज़िट के पास में जब दादाजी निकलते हैं तो टिकट कलेक्टर, यहाँ पर ये देखिए, ये सहारनपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ये टीसी है, टिकट कलेक्टर, और ये दादाजी, ये जो नरेटर्स ग्रैंडफादर हैं, इनसे टिकट पूछते हैं। तो जब ये अपना टिकट दिखाने के लिए निकालते हैं, ये जेब की, यहाँ से जेब से निकाला, तो एट द सेम टाइम टोटो पोक्ड आउट हिज नेक, यहाँ से देखो ये उसकी ये हेड दिखाई दे रहा है टोटो का, और यहाँ से ये एक वाइड ग्रिन किसको देता है? टिकट कलेक्टर को, टीसी को देता है ग्रैंड। अब देखो फिर क्या होता है, जब ये एक वाइड ग्रिन टीसी को देता है फिर क्या हो गया? अल्टीमेटली दिस विल अराइज प्रॉब्लम, ये एक डिफ़िकल्टी, एक दिक्कत खड़ी कर देगा। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, सहारनपुर तक तो टोटो बैग के अंदर ही रहा, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन के टर्नस्टाइल पर होते हैं तो सडनली एट वंस, अचानक ही क्या होता है? पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, वो अपने सिर बाहर निकालता है बैग से और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल देता है, यानी कि उसको अपने दांत दिखाता है, टीसी को अपने दांत दिखाता है। ठीक है, अब टीसी जो है यहाँ पर पुअर मैन बोला गया है क्योंकि टीसी भी डर जाता है। द पुअर मैन मीन्स द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स अफ्रेड, सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्य भी होता है और उसको देख करके डर भी लगता है कि ये क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ में, ये क्या है? टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड। द पुअर मैन मीन्स द टिकट कलेक्टर वाज टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, बट लेकिन क्या होता है? विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो उस कंडीशन है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब क्या होता है? दादाजी के गुस्से से बचने के लिए वो विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोवेंस, मतलब जो अपने दिमाग में ये सोचता है प्रेजेंस ऑफ माइंड से, और काफ़ी हद तक जो दादाजी ग्रैंडफादर्स अनोवेंस, यानी कि जो दादाजी का जो गुस्सा है कि ये बंदर ने देख लिया है, ये ग्रिन दे दिया है, तो थोड़ा आदमी सरप्राइज भी हो जाता है, ये क्या हो गया बोल के। ही सेड, वो बोलता है दादाजी के गुस्से को देख करके शांत करने के लिए, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास में क्या है? एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग जो रेलवे के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फेयर, इसका जो किराया है वो पे करना पड़ेगा। अनोवेंस मीन्स एंग्री, ये जो गुस्सा है, एंगर, एंगर वी कैन से। अनोवेंस ग्रैंडफादर्स, दो दादाजी के गुस्से से बचने के लिए बोलता है भाई आप ऐसा करो, इसका कुछ फेयर दे दो। इन वेन मीन्स इन वेस्ट, फालतू में जिसको बोलते हैं। इन वेन, बेफजूल में ही या बेकार में क्या किया दादाजी ने? क्या किया? डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब उन्होंने क्या किया? बैग से टोटो
को जो बेबी मंकी है, बंदर है, उस बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड। क्वाड्रपेड और क्वाड्रप्ड, जो ऑल द एनिमल्स हु वॉक ऑन देयर 4 feet। चौपाया जिनको जानवर कहते हैं, दैट्स क्वाड्रुप्ड। तो जो इवन, अब उन्होंने टोटो को बाहर निकाला बैग से और बोला कि आप एक बंदर को कुत्ता नहीं बोल सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी भी 4 पैर वाले को, क्योंकि ये जो है बंदर वॉक ऑन इट्स लेग्स, इसकी जो 2 टांगें हैं ये क्वाड्रप्ट नहीं है, दिस इज बाइड्रप्ट, ये दुपहिया है, ये चौपहिया जानवर नहीं है। और जो कुत्ता है वो तो चौपहिया, वो 4 पैरों पर चलने वाला जानवर है। तो तुम ये नहीं कह सकते हो एक चौपाए जानवर को तुम मतलब जो 2 पैरों पर चलने वाला है उसको आप नहीं कह सकते हो। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। लेकिन जो टीसी है, टिकट कलेक्टर है, उसने एक टिकट बना दिया कि नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज कैरिंग अ डॉग अलॉन्ग विद हिम, सो ही प्रिपेयर्ड अ टिकट सम ऑफ ₹3। तो 3 रुपये का उन्होंने एक टिकट बनाया और उसका किराया ले लिया। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। आगे पढ़ते हैं। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब दादाजी और गुस्सा हो गए और अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम सारे जानवरों का जब किराया ले रहे हो तो ये बताओ फिर। अब उन्होंने जेब से क्या निकाला? जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपने जेब से क्या निकाला उन्होंने? ओन बैग, अपने पीछे से क्या निकाला? टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने जेब से, और टॉर्टोइज, एक कछुआ निकाल दिया। एंड सेड, और बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब मुझे इसके लिए कितना पैसा देना होगा? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, बिकॉज यू आर चार्जिंग फॉर ऑल एनिमल्स, सो टेल द फेयर फॉर दिस एनिमल ऑल्सो। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। जो टीसी है, पुअर टीसी, अब उसने उसको ध्यान से देखा। क्लोजली मीन्स केयरफुल, नज़दीक से देखा। एंड प्रोडेड, प्रोडेड मीन्स कुचना होता है, उसको ऐसे छू करके देखना, टच करके देखना। सर्च्ड विद हैंड्स, पोक्ड विद हैंड्स, ऐसे उंगली से उसको छू करके देखा, दैट्स कॉल्ड प्रोडेड। इट विद हिज 4 फिंगर, जो अपनी उंगली है, 4 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उससे देखा। गेव ग्रैंडमदर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और तब उन्होंने दादाजी की तरफ एक मुस्कुराहट भरी और सेटिस्फैक्ट्री और विक्टीरियस, एक विजयी, ट्रायम्फेंट मीन्स विक्टीरियस या फिर विजयी, एक विक्टीरियस, एक विजयी लुक दिया उनकी तरफ, यानी कि मैं जीत गया और मैं अब इसके लिए मतलब एक डिसीजन मेक कर लिया था। एंड सेड, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि ये जो है ये एक कुत्ता नहीं है, सो इसके लिए क्या है? नो चार्ज, यू हैव टू पे नो चार्ज फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, क्योंकि ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ डॉग। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये पहले वाला जो सीन है, जो विज़न है, जो क्रिएट हुआ था रेलवे स्टेशन पर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पैरा पर। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल यानी कि अस्तबल, घोड़ों के रहने का जो स्थान होता है या गधों के रहने का जो स्थान होता है, उन्हें उसे, या खच्चरों के रहने का, जो म्यूल, डंकी, हॉर्सेस जहाँ पर स्टे करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेबल या फिर अस्तबल उसको बोला जाता है। प्लेस वेयर हॉर्सेस वेयर केप्ट, जहाँ पर घोड़े या गधों को रखा। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जो गधी है उनकी फैमिली, क्योंकि उनका प्राइवेट जू है तो उसी में एक नाना उसका नाम है। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. ये देखने के लिए अब दादाजी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। When Toto was finally accepted by grandmother, अब दादाजी को बता दिया गया कुछ टाइम बाद में कि भाई हमारे पास में ऐसा ऐसा एक पेट है
टोटो है, ये बेबी मंकी है, और उसको अब क्या किया गया, एक कंफर्टेबल, आरामदायक, फुल विद लग्जरी, मतलब एनिमल्स की लग्जरी, ह्यूमन बीइंग की लग्जरी नहीं, उनके लिए जो आराम से एक अस्तबल था, वहाँ पर नाना जो एक गधैया है, गधी है, डंकी, उसके साथ में उसको स्टेबल कर दिया गया अस्तबल में। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, और जब पहली रात को टोटो वहाँ पर स्टेबल में स्टे कर रहा था, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट। पेड मीन्स देना होता है, क्या दिया उनको, एक विजिट दी, देखने गए कि वो सब आराम से रह रहे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भाई टोटो वहाँ पर है और वो तो कोई ना कोई ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा कि वो सोने नहीं देगा, उस नाना को सोने नहीं देगा, तो इसके लिए उन्होंने एक विजिट दिया, देखा वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि उन्होंने देखा, टू हिज सरप्राइज व्हाट ही फाउंड दैट नाना विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के उसने क्या कर रखा है, पुलिंग एट हर हेल्टर, हेल्टर यानी कि जो रेन होती है, जो लगाम होता है, अ रोप, और जो स्टेप हो जिसको लगाम बोलते हैं हम लोग, दैट्स हाल्टर, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, घास नहीं खा रही है, हे या जो स्टॉप वाल जो है, उससे उसने अपना जो नेक है, जो गर्दन है, वो बहुत दूर रखी हुई है, और हाल्टर जो उसकी रस्सी है, जो लगाम है, उसको खींच के रखा हुआ है, तान के रखा हुआ है, मीन्स अनकंफर्टेबल, पूरी तरह से बेचैन। अब ऐसा क्यों हो रहा था, देखते हैं आगे कि वाई नाना वाज सो अनकंफर्टेबल और डिस्टर्ब। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मीन्स बैक और थाई, तो अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसकी बैक पर, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, हॉन्चेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक स्लैप किया, एक थप्पड़ मारा उसके नाना के, कि क्या हो गया, एंड शी जर्कड बैक, जर्कड बैक, सडनली, सडन मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड जर्कड, गॉट बैक एट वंस, अचानक पीछे आ जाना, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जो टोटो था वो भी उसके साथ में क्या हो गया, खींचा चला आया, ड्रैगिंग, घसीटता हुआ चला आया, ही हैड फास्टन, फास्टन फिक्स्ड, उसने क्या किया था, हैड अ टाइट ग्रिप, पकड़ के रखा हुआ था, फास्टन किया था, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो, लिटिल बेबी मंकी ने जो नाना, जो डंकी है, उसके कान पर, जो उसके लॉन्ग ईयर्स हैं, जो लंबे लंबे जो कान हैं, उन पर अपने दांत गढ़ा रखे हैं, उसको काट के रखा हुआ है, तो इसलिए, क्योंकि वो उसकी गर्दन पर सवार होकर के उसके, तो वो खींच खींच पीछे चला आया। पहले तो टोटो दादाजी को दिखा नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या कर रहा है, बाइटिंग हर और नानास ईयर्स, वो क्या कर रहा था, जो नाना, जो डंकी है, उसके कान काट रहा था। इस वजह से जो नाना है वो क्या थी, अनकंफर्टेबल थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, जो ये डंकी है, नाना, और जो ये मंकी है अपना टोटो, दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी, उनमें कभी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग cool winter evenings was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, when gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck, up to his neck। चलो यहाँ तक पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। तो ठंडी के दिनों में, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं, इस टाइम पर क्या होता है हमारे हिल्स में, दैन द स्टोरी सेट इन मसूरी नियर टू देहरादून, और वहाँ पर ठंड पड़ती है, तो उसके लिए एक ग्रेट, जो एक ट्रीट है उसके लिए, जो उसको एक मतलब अच्छी चीज़ जो है, जो उसको एक गिफ्ट है, वो क्या है कि ड्यूरिंग कोल्ड, वो शाम को, विंटर इवनिंग्स, वाज द लार्ज बॉल, एक बड़ा सा बॉल, एक बड़ा सा नान कह सकते हैं, टब कह सकते हैं, बाथ टब कह सकते हैं, ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का, गिवन बाय हिम ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। दादी जी उसको क्या करती थी सर्दियों में, शाम को एक बड़ा सा बाथ टब में ल्यूक वार्म
वाटर, गुनगुना पानी, उसको नहाने के लिए शाम को दे। ही वुड कनिंगली, कनिंगली मीन्स क्लेवरली, चतुराई से, चालाकी से। क्लेवरली क्या करता है, टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से पानी को देखता है कि कितना गर्म है। देन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करता है कि स्लोली, वेरी स्लोली और विद क्लेवरनेस, पहले चेक किया पानी का टेम्परेचर और धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, तो धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर अंदर रखेगा, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, चूँकि जो नरेटर है, स्टोरी नरेटर, वो भी ऐसा ही करते थे, तो जैसा, बिकॉज द मंकी दे आर एक्सपर्ट इन कॉपिंग, नकल करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसने देखा था कि नरेटर कैसे करता है, पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता है, फिर ग्रेजुअली एक पैर अंदर डालता है, फिर दूसरा और फिर पूरा। एंड ही वॉज इनटू वाटर अप टू हिज नेक, और गर्दन तक उसमें सबमर्ज हो जाता था, उसमें डूब जाता था, और फिर आराम से उसका नहाना होता था। और फिर वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब आराम ऐसा हो गया, ही वुड टेक द सोप, जब अच्छी तरह से भीग गया, पूरी तरह से सोकिंग अप हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे, सोप लेंगे, सोप इन हिज हैंड्स और फीट, ही वुड रब और हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर वो साबुन लेकर के अपने हाथों पर, अपने पैरों पर पूरी तरह से उसको रब करेंगे। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ही वुड get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और फिर जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वहाँ से तुरंत निकल करके एंड रन आउट एज, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, किचन फायर, जो आग जल रही है रसोई में, खाना बन, टू कुक द फूड, और वो क्या करेगा, वहाँ पर जा कर के अपने आप को सुखाने के लिए, आग सेकने के लिए सीधा रसोई में एंटर कर लेगा। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और ये सब करते हुए, जब वो ये सब परफॉर्म कर रहा हो, ये सब जब वो दिखा रहा हो नहाने से लेकर के, और ये सब जो उसका आग सेकने तक का जो ये कार्यक्रम है, जब इस परफॉर्मेंस को कोई देखेगा और फिर उसके ऊपर क्या करेगा, हंसेगा। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, जब ये सब करते हुए कोई उसको देखे और उस पर हंसे, तो फिर टोटो क्या फील करता है, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। अब उसको क्या होता था, ही फील्स हर्ट, उसको परेशानी महसूस होती थी, कंफर्टेबल, उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई ये देख करके उसकी तरफ हंसे। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने के लिए मना कर देता कि मैं नहीं नहाऊंगा। अब क्या होता है, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो क्या होता है कि वो अपने आप को जिंदा ही उबाल देने में सफल हुआ, यानी कि उसने अपने आप को एक बार क्या कर दिया था, जिंदा ही उबाल लिया था इस नहाने के चक्कर में। तो नहाने के लिए उसने क्या, हिमसेल्फ अलाइव, उसने अपने आप को जिंदा उबाल दिया था। अब देखते हैं, अ लार्ज किचन कैटल, अब एक बड़ी सी किचन में केतली रखी हुई थी, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while. Until the water began to boil, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब देखो, ये यहाँ पर नरेटर ने थोड़ा फन डालने के लिए, स्टोरी में थोड़ा हंसी डालने के लिए यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने आप को एक बार जिंदा ही उबाल दिया था। तो क्या होता है कि आ लार्ज किचन कैटल, एक बड़ी सी जो रसोई की जो केतली है चाय बनाने के लिए, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, आग के ऊपर छोड़ी हुई थी, और जब चाय का पानी इतना गुनगुना था, मीन्स ल्यूक वार्म था, जो कि नहाने के टेम्परेचर के लिए, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग, और टोटो वहाँ पर था,
और फालतू था, कोई काम उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने देखा कि हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं, किसका, केटली का। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड मीन्स रिमूव द कवर। और फिर व्हाट ही फाउंड इट, उसने क्या पाया, दैट द वाटर वॉज वार्म इनफ फॉर अ बाथ। और उसने ये देखा कि जो पानी केतली में है वो नहाने के लिए सफिशिएंट, इतना हॉट होना चाहिए, इतना वार्म होना चाहिए, इतना है। एंड ही गॉट इन, और फिर उसने पहले अपना एक पैर अंदर डाला और फिर दूसरा। विद हिज हेड, अब जो उसका सिर है स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपना जो हेड है वो केतली की ओपनिंग से बाहर निकाल लिया। स्टिकिंग आउट मीन्स टेकिंग आउट, बाहर निकालते हुए, गर्दन बाहर है और बाकी पूरा पानी में डूबा हुआ है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ समय तक तो ठीक रहा, क्योंकि नीचे से तो आग जल रही है। और ग्रेजुअली द टेम्परेचर विल इंक्रीज अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तब तक तो ठीक था। बट टोटो, लेकिन जैसे जैसे पानी उबलना शुरू हुआ, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा सा टोटो बाहर निकला, नीचे से पानी गर्म लगा, लेकिन जब उसने बाहर देखा कि फाइंडिंग इट वाज कोल्ड आउटसाइड। अब क्या होता है, गर्म से जब बाहर आदमी ठंडे की तरफ आता है तो बाहर ठंडा ज़्यादा लगता है, तो उसको लगा बाहर तो बहुत ठंडा है, केतली में घुस जाता हूँ वापस। एंड अगेन सेट डाउन इन द कैटल, और फिर वापस केतली में चला जाता है। और ये जो चलता है ये होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और ये कुछ समय तक ऐसे ही मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन। होपिंग जो इसकी जंप है ये उछलता है ऊपर फिर नीचे, फिर बाहर देखा ठंडा है, फिर अंदर चला गया, फिर अंदर चला गया, फिर गर्म लगा, पानी उबल रहा था, फिर बाहर आया, और फिर जब तक कि अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। हॉल्ड मीन्स पुल्ड और टेकन आउट और कैरीड। तो जब तक कि उसको दादी जी ने बाहर नहीं निकाला, दादी जी आई, उसको बाहर निकाला, और वो मियरली हाफ बॉइल्ड, वो लगभग आधा उबला हुआ था, आउट ऑफ द कैटल, और फिर उसको केतली से आधा उबला हुआ बाहर निकाला। अब यहीं पर भी इसकी जो नॉटीनेस है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। और फिर इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made very effort to he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो अब यहाँ पर जो बुआ हैं, जो आंटी हैं नरेटर की, कहानी सुनाने वाले की, जब वो आती थी, एंड इफ़ देयर इज़ अ पार्ट, साथ ही ये बात भी है कि जब कभी भी दिमाग में किसी का अगर कोई ऐसा पार्ट है विच इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर नॉटीनेस, दिमाग में क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट में हमारा ब्रेन बटा होता है, तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि अगर ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट है विच इज़ स्पेशली डेडिकेटेड और डिवेटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो जो शरारत वाला जो पार्ट है वो फुली और लार्जली उसका विकसित हो रखा था, किसका, टोटो का। यानी कि टोटोज माइंड वाज फुल विद मिसचीफ, उसका दिमाग शरारतों से भरा हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को फाड़ देता था, टुकड़े टुकड़े करना, टू पीसेस। व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, और जब कभी भी मेरी कोई बुआ उसके पास में आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। वो क्या करता था, पूरी कोशिश करेगा उसकी ड्रेस को पकड़ने के लिए और पकड़ करके फाड़ करके उसमें छेद बनाने के लिए। वो ये कोशिश उसकी रहती थी हमेशा, जब कभी भी बुआ उसके पास में आए तो वो क्या करे, उनकी ड्रेस को पकड़े और उसमें होल कर दे। वन डे एट लंच टाइम, अब एक दिन दोपहर में खाने का समय है, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, दिन में पुलाव बनी थी और वो कहाँ रखी थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, और जो खाने की टेबल है, खाने के टेबल के सेंटर में रखी हुई है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और जब हम कमरे में पहुँचे तो हमने क्या देखा कि टोटो क्या कर रहा है, स्टफिंग और फीडिंग
हिमसेल्फ विथ राइस, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा था, पुलाव खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड क्राइड अलाउड, मैं जोर से चिल्ला देना, स्क्रीम करना, और क्राइड विद अ फुल वॉइस, तो दादी माँ चिल्लाई, और दादी माँ के चिल्लाते ही एंड टोटो ने क्या किया, थ्रू अ प्लेट एट हर, उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, जब मेरी बुआ में से एक बुआ उसके पास में गई, रश्ड फॉरवर्ड, वेंट नियर टू हिम, तो उसने क्या किया, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, इन द फेस, तो टोटो ने क्या किया, पानी का भरा हुआ गिलास उनके चेहरे पर डाल दिया। वहाँ तो प्लेट फेंकी दादी जी के सिर पे, और यहाँ पर पानी का गिलास बुआ के चेहरे पर डाल दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी अंदर आए कमरे में, तो टोटो ने क्या किया कि टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और जैसे दादाजी अंदर आए, उसने वो डिश, जो पूरा बर्तन है फुल विद पुलाव, उसको लेकर के और खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और वो कहाँ लेके चला गया, खिड़की से बाहर निकल करके जो कटहल का जो पेड़ है, जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बैठ गया आराम से। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और अभी भी द डिश फुल विद पुलाव स्टिल, अभी भी उसके हाथों में उसने पकड़ी हुई है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहीं पर उसी कटहल के पेड़ के ऊपर पूरे दोपहर तक वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और क्या है, धीरे धीरे वो जो पुलाव है उसको खाता रहा, और वहीं पूरे दोपहर में लेटा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मीन्स ईच ग्रेन, एक एक दाना उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरा खाऊंगा, एक भी दाना नहीं छोड़ूंगा। एंड देन फिर क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट मीन्स टू इंसल्ट, उसका अपमान करने के लिए, किसका, ग्रैंड मदर का, क्योंकि दादी जी चिल्लाई थी ना उस पर, इसलिए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और फिर क्या किया, ऊपर से दादी जी को चिढ़ाने के लिए, उसको टू मेक इंसल्ट और टू मेक हर एंग्री, उसने क्या किया, ऊपर से प्लेट को, जो डिश है, जो बर्तन है, उसको नीचे फेंक दिया, द पॉट, द कंटेनर टू कंटेन द राइस ऑन द डाइनिंग टेबल, एंड चैटर्ड, चैटर्ड इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मंकी, जो मंकियों की जो आवाज़ होती है, कटकट करने की जो आवाज़ होती है, और विद डिलाइट, विद डिलाइट, डिलाइट मीन्स जॉय, खुशी के साथ में, विद इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और वो जो डिश है उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। देन अब ये देखो उसकी ये एक और जो एडवेंचर है या मिस्चीवनेस है, उसने प्लेट को तोड़ दिया। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली और सर्टेनली, स्पष्ट रूप से क्या है, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि टोटो एक ऐसा पेट, एक ऐसा डोमेस्टिक एनिमल है जिसको कि हम बहुत लंबे समय तक अपने साथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इतना जो नुकसान करे, किसी को पानी फेंक रहा है, कहीं डिश तोड़ रहा है, कहीं प्लेट ले जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें, इसको बहुत लंबे समय तक अपने साथ में नहीं रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी, जो कि पहले उसकी जो नॉटीनेस थी, जो उसकी मिस्चीवनेस थी, जो उसके ऊपर खुश होते थे, अब दादाजी को भी ये रियलाइज़ होने लगा था कि हाँ बिल्कुल हम इसको अपने साथ में एक लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू, एंड वेल टू डू मीन्स वेल्दी या रिच, हम लोग क्या हैं, इतने धनी नहीं थे, हम इतने धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, कि हम इतना जो ये नुकसान कर रहे हैं, कुड नॉट बियर, अफोर्ड मीन्स कुड नॉट बियर, BEAR बियर, वी कुड नॉट बियर द फ्रीक्वेंट मीन्स वेरी ऑफन, जो रिपीटेडली जो लॉस हैं, जो ये बार बार हो रहा है, लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर जो लगा है, सबसे पहले वॉलपेपर से शुरू होती है, तो कर्टेन, दरवाज़ों के पर्दे हैं, जो कपड़े हैं बुआ जो पहने थे उनमें भी होल कर देना, लॉस ऑफ डिशेस, अभी देखा उसने बर्तन तोड़ दिया। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और फिर उन्होंने क्या किया, सेम टोंगा ड्राइवर को उन्होंने ढूंढा, उसको सर्च किया उसको,
और वो मिल गया, फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उन्हीं को बेच दिया। कितने में? फॉर द सम ऑफ 3 रुपीज़, 3 रुपये में वापस उन्होंने। इन हाउ मच प्राइस दे बॉट इट? 5 रुपीज़, एंड नाउ सोल्ड बैक टू ओनली 3 रुपीज़, तो 2 रुपये का यहाँ पर ये लॉस हो जाता है। एंड द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, द फेमस English literature writer. Many story they wrote for the children. बच्चों के इंटेनमेंट के लिए अच्छे अच्छे स्टोरी लिखते रहते हैं, लिखते रहे हैं रस्किन बॉन्ड। टर्नस्टाइल बता दिया, हेल्टर बता दिया है, ये जो लगाम होती है। ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये PDF में अपलोड किए जा चुके हैं और इनका लिंक भी मैं भेज रहा हूँ, और उसको आप अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। और ये जो अदर जो रीडिंग्स हैं जो पढ़नी चाहिए, माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय जेराल्ड ड्यूरेल, और ग्रैंडफादर प्राइवेट जू बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जो ये लिया गया है, ये एक साइटेशन है छोटा सा, जो उनका जो मेन बुक है दैट वाज ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, वहाँ से ये लिया गया है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एंड जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो मोगली वाली जो कहानी है, जंगल जंगल पता चला, एक सीरियल भी बना था जंगल बुक, दैट वाज रिटन बाय Rudyard Kipling. That's all the explanation part and the word meaning part, and in Hindi as well as in English. Hope you enjoyed. Thank you.